Okay. Yes. What do you think if I give you a scale from 0 to 100? What do you think? How much charged you are right now? How much charged is your brain right now? You can write in the chat also. So what all topics we are going to cover today? I'll be just taking that. So we'll do a lot of examples to understand this whole psychology part, okay? You can write in the chat. So what do you think? How much charged you are? Okay, 75%. Okay. So today we are going to explore CBT, NLP, Maslow, defense mechanism, awareness exercises, REBT, stress inoculation, and attribution, all in one powerful session. And if we think our minds like a battery, and the question which I just now asked you, how charged do you feel? And type a number between 0 and 100. So Anita has answered 75, Vandana not much charged, maybe 50%. Asta, what do you think? How much charged you are? Ma'am, right now I was driving so fast, I'm super charged. Right? Great. Actually, it was a hectic day, so I am towards on the lower side only. But I am not sure if I'm getting the meaning of charged. Okay, so let's dwell into this. So today we are going to learn how to recharge our minds, rewire our thoughts, and regain control of emotions using practical tools. Okay, so there's no heavy theory, only we'll be understanding through some experiences and through some exercises which we can apply immediately. So to begin with, the first theory. So first theory we are going to talk about is Maslow's hierarchy. No need to write down the notes. I'll share this PPT. Okay. So Maslow's hierarchy says that we have to understand our needs. Okay. So what do you think? What do you think? What is our need? Ma'am, the basic need is roti, kapda, makan. Actually, we studied this hierarchy during MBA, so I know a bit about it. I think I'll let others. How much do we remember? See, we know many things, but when we are stressed out, do we remember that? No, we don't. No, So, no. yeah, so we first need to understand our needs. Okay, so before we fix thoughts, we need to understand why certain situations trigger emotions. Now, if you look at Maslow's hierarchy here, you can see that the first need is our physiological need, which is food, shelter, sleep, rest. These are our physiological needs. How many of you think that you have met all these needs, or you meet these needs very easily every day? Yeah, definitely, ma'am. It's so easy that we sometimes forget that to be grateful for that also. Yeah. So we can always smile for that, that our basic need is every day being fulfilled. Yeah. Then comes safety, security, stability. So we all are sitting here taking a class. That means we are safe and secure. Otherwise, we couldn't have reached to this stage. Yes. Then comes belongingness, where comes relationships and love. And then comes esteem, respect, and appreciation. And then comes self actualization, growth, and purpose. So, Neeta, just now, what you discussed with me was your self actualization, Yeah. growth, and purpose. Yeah. So, you need to understand that you're on top of the pyramid for sure, because you're actually fighting for that level. That means you are meeting all the needs which are below. If you look at the pyramid, you're at the top. So have you ever thought of that? If you have ever thought of that, you would not have. Not really. Yes. So Not really. Yeah. yeah. So if we are thinking of that stage of growth and purpose, that means our needs are being fulfilled. Our physiological safety, belonging, esteem, everything is fulfilled. Then we are actually thinking about self-actualization, growth, and purpose. Okay. So that makes us feel grateful, feel gratitude for. Okay. Mm.
So the example is, imagine a wife feels her husband always sides with his mother. Why does she feel hurt so intensely? Often her belonging and esteem needs are unmet. Yeah. So that lady is not able to come to self-actualization because she's stuck on the fourth stage. She's fighting for respect and appreciation. Only after that she would go for the self-actualization. Yeah. So this we have already done. Like we took the example of Nita. So which Maslow need was triggered? We have already discussed for this lady, fourth stage. Yeah. So we have to recognize the root level so that we understand our reaction before we change them. Then comes defense mechanism. Most of the times, do we respond or do we react? In any unfavorable situation, do we react or do we respond? React for me for sure, ma'am. React. React. Yes. And it is very natural because that's called defense mechanism. Okay, let us understand what is defense mechanism. So sometimes we react automatically. That is called our defense mechanism, and they are not bad. Okay, they first thing is they are not bad. They protect us, but sometimes they stop us from seeing the reality. We're not able to see the reality. Now there are different types of defense mechanism. Some are negative, but some are positive also. Like it can be denial, it can be projection, it can be displacement, rationalization, or sublimation. We'll understand everything with the help of example. Now, what is denial? Denial means ignoring the reality completely. Okay, so this wife, she's saying he never listens to me. So, do you think it is true? No. 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 So, she is denying, she's ignoring the reality. Okay. He doesn't love me. Now, that is called projection, attributing own feelings to others. Okay. So, what you are not feeling good and you are just projecting those feelings to somebody else. Okay. That is projection. You are actually putting everything on one person. You're not feeling good and you're projecting everything on one person. Okay. Then is displacement. So the wife now is angry and shouting at kids. Okay. So that is displacement. You have issues with some person, but you are displacing those emotions to somebody else. That is displacement. Then rationalization. Sometimes you justify even harmful behavior. Okay. So that is also not good. Okay. He sides his mother because of family rules. So rationalization means you are justifying something which you shouldn't, right? Then comes sublimation. What is sublimation? Channeling negative energy positively. Again, channels frustration into volunteering at kids' school. So, what you're doing, because you know you're not feeling good, you're doing something where you can help others. So, is sublimation negative or positive? The outcome is maybe positive, but I think the why it arises is not sure if it is positive. It is, of course, positive. When you are not feeling good, you are taking out yourself from that environment because you're not sure. So you're not denying, you're not projecting, you're not displacing, you're not rationalizing, but you are coming out of that situation and doing something constructive. Okay. So we can have defense mechanism where we can have even positive defense mechanism. Okay. Now, what do you think? The lady who says he always ignores me. So now tell me, what is this? Is it denial, projection, displacement, rationalization, or sublimation? Projection, I think. We can have role plays like this. This is all about if you are counseling somebody, you can have the role play session where you ask somebody to be that wife and say that. Okay, so how do you check?
you have to ask the question, is this always true? Because the word is, the sentence is, he always ignores me. So we have to ask, is this always true? When you ask this, then the person would take a minute to think, really, is it always true? Okay. Now, so this was about defense mechanism. So we need, even if it is us or even if we are counseling any client, we need to know that the client has chosen which defense mechanism. Was it denial, was it projection, was it displacement, was it rationalization, was it sublimation, to have an understanding that either whether we are positive or negative, just that, nothing else, just understanding whether we are using positive defense mechanism or we are using negative defense mechanism. Just understanding this will make us feel calm. Oh, this is negative. Oh, and you can be happy if it is positive. Yeah. Now coming to awareness exercise, shifting focus. So what is awareness? Awareness is the foundation of emotional control. We can choose where to focus instead of being overwhelmed by the negative thoughts. What we can do, we can sit comfortably, close our eyes, take 3 deep breaths. We can open our eyes and we can, this is 3, 2, 1, but we can do 5, 4, 3, 2, 1 also. This is called mindfulness, where we uh, see 5 things around, hear 4 things, okay, like that. Or here, like you can see, you can notice the 3 colors in this room, 2 textures, 1 sound. So this brings us uh, into the present moment. Okay, it just stops your brain to think anything else, but you just start focusing on your moment which is happening right now. So can you all tell me 3 colors, 2 textures, and 1 sound right now? Should I tell? Yeah, So I have yellow on my wall. I'm wearing black. I can see you in pink and two textures. I can feel the keyboard of my laptop, and I am having a pencil. One sound I can hear of fan and you. great. So this is the kind of activity which will make us aware of the present moment. Okay, and we can also feel our body. There's a lot we can do. We can start from our toes and to the head. We can have that meditation where we feel each and every part of our body, and then we can always think of any emotion which is going inside us. So that is awareness of the surrounding, awareness of the body, outside and inside. Okay, so if there's any emotion, like if a wife is angry at her husband, she might be um so what kind of emotion she is holding? Anger. Yeah. So immediately, if she shifts her focus 3 neutral objects around, her anger level will go down immediately. For that moment, anger level will go down if she observes the things around. So we don't suppress, but what we do, we acknowledge and then we redirect the attention. So attention, we are diverting the attention by bringing awareness of the surrounding. That is going to immediately stop that, intensity will reduce. Okay. Now, the main core of today's session is CBT. What is CBT? Just a minute, I'll close the door. Sorry. Yeah. Okay. So coming to CBT, what is CBT? Now, there are 4 types in this, and we will understand with the help of examples. So we are going to do the first type of CBT, which is REBT, ABC, and then D. Okay. So CBT helps restructure thoughts. Okay. What is this ABCD? In CBT, the first one is REBT.
Okay, so what REBT uses? ABCD. Now, what is ABCD? You can see here. A for activating event, B is for belief, C is for consequence, and D is for dispute. Now, let us understand these are heavy terms. So, I have put more and more examples, day to day life examples, so that you can easily relate to and understand. So, the event was that the husband takes the side of the mother, and the belief is that he doesn't love me. Okay, consequences, sadness or anger. Now, create rational belief. So, is that logically true? Maybe he wanted peace. Okay. So, that doesn't mean that he doesn't love. So, understanding that it can be just because he just don't want to get into conflict between the two ladies. Yeah. So, this is ABCD: event, belief, consequence, and create rational. So, the dispute is, so we have to think of the rational belief. Okay. This was the first one. Now, the second one is attributional reframe. Our automatic, don't worry if you have any kind of confusion, we will have lots of examples for clarity. Okay. So, our automatic attributions can exaggerate problems, we often say. Okay. For example, he doesn't like me. Okay. Now, when any person says he doesn't like me, just because maybe he didn't text back, maybe he didn't reply. So, what can be the reasons? Maybe he was busy. Okay. So, this is attributional reframe. Okay. Now, how is it different from the first one? How is it different from the first one? Here we are not working on any belief system. Here we are just trying to make it look positive. We are not sure if it is positive or not. We are just trying to make it little positive. Then comes fear, stress inoculation. Here there are steps. Okay. For example, you're scared of spider. Now this is fear technique. Fear, face everything. So FEAR, face everything and recover. Okay. So first thing is disassociate. Watch yourself on screen near spider cage. You have to imagine that you are near the spider cage. That is disassociated. Okay, so now you have disassociated yourself and you're imagining that there is a person near the spider cage. Now associated, imagine you are standing near the cage. Now you have to put a little humor. So you have just visualized, it is in your picture that you are standing and there's a spider cage, and now you are trying to fit in some humor there. That spider is in funny outfit. You have to visualize a funny outfit around the spider. Okay, as humorous as possible. And then you have to gradually shift to the real exposure. Look at the cage, and you have to imagine yourself gradually moving towards that cage. And then when you have to imagine that when you touch, it was safe. Okay, so it's just an example of the spider, but that's how you can overcome your fear by imagining yourself going through that fear and coming out of it very confidently. You have to just visualize yourself facing that fear and coming out of it easily. Okay, but then it is not going to happen at one go. Okay, so it will be first time 10%, second time 20%, third time 30%. So the fear goes gradually and not uh, at one go. Then comes NLP. What is NLP? Now, example, you are standing on stage, okay, to speak something, and you are trembling. You have to imagine yourself, imagine your negative image first, that you are standing and you are trembling. Okay, you are small, you are dim. Now you have to create another image of your own, speaking confidently, smiling. Okay, you're big, bright. Okay.
Now swish. Swish is negative to positive rapidly. Okay, so you have to give it again and repeat 6 to 10 times so that you can shift from your negative image to your positive image. So this rewires our brain to associate fear trigger with confidence. And this every time, this is the symbol of anchoring. Okay, so we press thumb and index, and then we create the positive image. So whenever we feel that emotion, we do this to feel positive. Okay, now integration and homework. You have to when you do all of these with your client or with yourself, you have to work on it. It's, as I told you, it's not something that we are going to conquer at one go. Okay, um, now I will show you a lot of examples. Okay. Sorry. Can you see the screen? Okay. So let us quickly revise. Now, CBT, we have done attributional therapy. There's one more, which is cognitive remediation therapy. We did not include in that, but here I'm telling you, this is theoretical, this is practical. Okay, this is for children. It's not anything about depression or anxiety. It is about the children who have schizophrenia, who have brain injury, who are ADHD children. For them also, we do CBT, and the first type is CRT. So this is not for this is not about psychology. It is about helping the children with all of these. So here, what we do is we work on their cognitive skills, means their attention, their memory, their problem solving, flexibility in thinking. So उनको हम ऐसे टास्क देते हैं जो ब्रेन को ट्रेन करते हैं, है ना। मतलब जितने भी कंप्यूटर बेस्ड गेम्स हो गए, पजल्स हो गए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज हो गई। जैसे कि मान लीजिए एक क्लाइंट है, उसको डिसीजन लेने में डिफिकल्टी है, वो थेरेपिस्ट के पास में जा रहा है, और उसको थेरेपिस्ट जो है स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग गेम्स के थ्रू उसकी अटेंशन, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ा रहा है। सो दिस इज कॉग्निटिव रेमेडिएशन थेरेपी। ओके, एट्रीब्यूशनल थेरेपी जो हमने अभी पढ़ा था, व्हाट इज दैट? तो क्लाइंट का एट्रीब्यूशन स्टाइल, यानी कि वो अपना फेलियर और सक्सेस को कैसे देखता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट अगर ये सोच रहा है कि मैं एग्जाम में फेल हुआ क्योंकि मैं स्टूपिड हूँ, है ना। लेकिन ये जो एट्रीब्यूशनल थेरेपी है, इस इससे हम क्लाइंट को क्या फील करवा रहे हैं कि थेरेपी के बाद वो ये सोचे कि मैंने इस बार स्टडी इनफ नहीं की थी। ओके, सो स्पेसिफिक चेंजेबल। मतलब अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि मैं एग्जाम में फेल हुआ क्योंकि मैं बेवकूफ हूं, उसको सिर्फ ये एहसास दिलाना कि आपने मेहनत कम की थी। ठीक है, देन स्ट्रेस इनोकुलेशन जो हमने किया, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? यहां पर हम क्या कर रहे हैं, मोस्टली स्ट्रेस इनोकुलेशन काम आता है एंजाइटी, एंगर और पीटीएसडी में। स्ट्रेस और एंजाइटी को हैंडल करना, है ना। तो ये एक तरह से हम इसको इनोकुलेशन थेरेपी बोल रहे हैं, क्योंकि एक वैक्सीन की तरह काम करता है। पहले क्लाइंट को स्ट्रेस के बारे में समझाया जाता है। ठीक है, फिर कोपिंग स्ट्रैटेजीज कि देखो आपको ये स्ट्रेस है, तो आप रिलैक्स करो, आप सेल्फ टॉक करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस करो, और फिर ग्रेजुअली जो है स्ट्रेस सिचुएशन में हम उसे अप्लाई करवाते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करेंगे कि उसको हम ये समझाएंगे कि स्ट्रेस आता कहाँ से है ना। फिर रिलैक्स कैसे करना है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक कैसे करना है, और फिर रियल स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हमें उसे अप्लाई कैसे करना है। मान लो वही स्टूडेंट है ना, वो एंग्शियस है, उसको एग्जाम का टेंशन हो रहा है, तो थेरेपिस्ट उसको ब्रीदिंग पे काम कर रहा है, उसके सेल्फ टॉक, आई कैन मैनेज। तो ये एक्चुअली एक वैक्सीन की तरह काम करेगा, जहां पर वो इमीडिएटली जो है स्ट्रेस और एंजाइटी से रिलीफ और रिलैक्स फील करेगा, है ना।
देन कम्स आरईबीटी, जो अभी हमने किया था। फर्स्ट जो आरईबीटी हमने किया था, एबीसीडी मॉडल, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी कर रहे हैं, इरेशनल बिलीव्स और नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स। यानी कि एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर, रिलेशनशिप इश्यूज अगर हैं, तो क्या हुआ इवेंट, है ना। जैसे बॉस ने डांटा, तो बिलीफ क्या है, बॉस ने डांटा तो बिलीफ ये है कि मैं यूजलेस हूं, सब मुझसे नफरत करते हैं। अब उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, सैडनेस है, एंजाइटी है। अब हम क्या करेंगे, बिलीफ को चेंज करेंगे। हमको वर्क बिलीफ पे करना है, जो बिलीफ है वो गलत है कि मैं यूजलेस हूं, तो उसको चैलेंज किया जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप यूजलेस हो, तो ऐसा आपको क्यों लगता है, हमने बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन किया, ऐसा आपको क्यों लगता है ना। मुझे परफेक्ट होना चाहिए वरना मैं लूजर हूं। तो थेरेपिस्ट उसको चैलेंज करता है और दिखाता है कि ये इरेशनल है, ये आपके दिमाग में है, बट इट इज नॉट रियल। तो उस बिलीफ सिस्टम को तोड़ने का काम थेरेपिस्ट करता है ना। अब ये डिफरेंसेस हैं। सीआरटी कहाँ यूज करेंगे, शिजोफ्रेनिया में, एडीएचडी में। और क्या तरीका है, पजल्स खिलाना, ठीक है। एट्रीब्यूशनल कहाँ यूज करेंगे, डिप्रेशन में। वहां पर हम क्या एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर आप फेल हुए हो, इसका मतलब आप बेवकूफ नहीं हो, आपने पढ़ाई कम की है। एसआईटी क्या है, स्ट्रेस को ब्रीदिंग और सेल्फ टॉक से इमीडिएटली रिड्यूस करना। माइंडफुलनेस भी कर सकते हैं, जो अभी हमने किया, अपने आसपास देखो, है ना। और आरईबीटी क्या है, जहां पर हम उसके बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं। ये चार तरह के सीबीटी हैं, है ना। फिर से वही सेम चीज है। ये और एग्जाम्पल्स हैं, है ना। ये मैं फाइल आपको शेयर करूंगी। एग्जाम्पल्स हैं, स्टूडेंट फेल हो रहा है कि मैं डम हूं, तो थेरेपिस्ट उसको समझा रहा है कि आपको ज्यादा पढ़ना है ना। ये सेम एग्जाम्पल्स वापस से हैं, कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स भी हैं। तो बहुत सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो सीआरटी क्या है, सीआरटी में आप साइकोलॉजिकल हेल्प नहीं कर रहे हो, ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो पजल सॉल्व, मेमोरी और अटेंशन और कंसंट्रेशन के लिए सीआरटी। उसमें हम सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल गेम्स खिलाते हैं, ताकि बच्चे की या एडल्ट की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो इम्प्रूव हो। एट्रीब्यूशनल थेरेपी में हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूशनल थेरेपी में हम सिर्फ फेलियर्स का मतलब चेंज करते हैं। अगर आपको लग रहा है मैं बेवकूफ हूं, ये रीजन नहीं है, आपको मेहनत और करनी पड़ेगी। एसआईटी में हम क्या कर रहे हैं कि ब्रीदिंग, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस से हम एंजाइटी को सेटल कर रहे हैं। और आरईबीटी में हम जो बिलीव्स हैं उनको हमें तोड़ना पड़ेगा। कि अगर आपके अंदर ये कोई बिलीफ बैठ गया है, तो आप उसको क्वेश्चन करो, उसको चैलेंज करो कि आप ऐसा बिलीफ लेकर बैठे हो, क्या ये सही है ना। जैसे सीआरटी के अंदर बच्चा मैथ्स के सम्स भूल गया, तो वो मेमोरी का बात है, मेमोरी में सीआरटी ही करना पड़ेगा, है ना। मेमोरी, कंसंट्रेशन, अटेंशन सीआरटी है। एट्रीब्यूशनल में स्टूडेंट फेल हो गया, तो वो सोच रहा है मैं बेवकूफ हूं, हमने उसको ये बोला नहीं, आपको पढ़ना ज्यादा है, आप स्मार्ट हो। एसआईटी अगेन घबराहट, तो उसको पॉजिटिव सेल्फ टॉक, रिलैक्सेशन, मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस। एंड आरईबीटी, मान लो कि एक लड़की ऐसा सोच रही है कि मुझे सबको खुश करना है, और नहीं, अगर सब खुश हो रहे तो इसका मतलब मैं बुरी हूं। तो थेरेपिस्ट उसको चैलेंज करके समझाएगा कि सबको खुश करना पॉसिबल ही नहीं है ना, बट यू आर वैल्यूएबल, ठीक है। अब अगर हम एक ही सिचुएशन ले लें, मान लो कि वो बच्चा एग्जाम में फेल हो गया, तो ये सारी हम क्या ये चारों चीजें उस बच्चे पर अप्लाई कर सकते हैं, जो बच्चा एग्जाम में फेल हो गया, उसके साथ सीआरटी, एट्रीब्यूशनल, सिट और आरईबीटी चारों को। तो सीआरटी में हम उस बच्चे के को क्या कराएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, क्वेश्चन ज्यादा, मेहनत ज्यादा कराएंगे। एट्रीब्यूशनल में हम उसे बोलेंगे कि इस बार प्रॉपर रिवीजन करना पड़ेगा तुमको। एसआईटी में हम उसको ब्रीदिंग, सेल्फ टॉकिंग कराएंगे। आरईबीटी में हम उसे उसका बिलीफ सिस्टम तोड़ेंगे, है ना। कि एक फेल से तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं होती है। एक बार अगर फेल हो गए तो उसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज योर ट्रू वर्थ, है ना। ओके, नाउ सीआरटी का फोकस क्या है, स्किल इंप्रूव करना, मेमोरी, अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये और एग्जांपल्स हैं, है ना। दिस इज, यू कैन गो थ्रू मोर एग्जांपल्स, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। सीआरटी स्किल्स इंप्रूव करना, एट्रीब्यूशनल फेलियर का मतलब बदलो, एसआईटी स्ट्रेस हैंडल करो, आरईबीटी गलत बिलीफ तोड़ो, है ना।
फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक वाइफ ने खाना बनाया, हस्बैंड ने बोला टेस्ट अच्छा नहीं है, वाइफ अपसेट हो गई। अब आप लोग बताओ, इसमें हम क्या अप्रूव, क्या हम लगा सकते हैं? अगर ये चारों चीजें हमें उस वाइफ के साथ लगानी है, आपके पास आपकी क्लाइंट आती है, वो ये बोलती है कि मैंने तो खाना बनाया था, मेरे हस्बैंड ने बोला खाना अच्छा नहीं है, वाइफ अपसेट है। हाउ वुड यू अप्लाई ऑल दीज? सीआरटी मतलब कि भाई आप नई स्किल्स इंप्रूव करो, अपना कुकिंग स्किल्स को और इंप्रूव करो। दैट इज अ पॉजिटिव थिंग, कॉग्निटिव रेमेडिएशन थेरेपी, है ना? तो चलो कुकिंग को नए रेसिपीज और नए टेक्निक्स प्रैक्टिस करते हैं, है ना? तो ये हमने सीआरटी लगाया। एट्रीब्यूशन कैसे लगाया? अब वाइफ बोल रही है मैं तो बुरी कुक हूँ, मुझसे तो कभी अच्छा खाना बनेगा ही नहीं। तो थेरेपिस्ट समझा रहे कि नहीं, आज टेस्ट थोड़ा ऑफ हो गया, हो जाता है कभी कभी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम बुरी कुक हो। तो मतलब फेलियर का रीजन स्टेबल से हटाकर टेम्पररी, आज ऐसा तुमसे हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा होता है। स्ट्रेस इनोकुलेशन उस टाइम पे, क्योंकि उसको एंजाइटी हो रही है उस टाइम पे, उसको रिलीफ फील कराना है ना? उसको स्ट्रेस हो गया है, तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक, है ना? मैं काम रहूंगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना? मैं काम रहूंगी, है ना? देन हम्म देन आरईबीटी, रैशनल इमोशनल बिहेवियर। अब हमको ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी बिलीफ सिस्टम को तोड़ना सबसे इंपॉर्टेंट है ना? कि हस्बैंड ने टेस्ट पसंद नहीं किया, इसका मतलब क्या है? कि आप यूजलेस वाइफ हो। तो थेरेपिस्ट चैलेंज करता है, एक खाना पसंद नहीं आने से तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं होती। तुम अच्छी वाइफ हो, एक गलती से तुम कम नहीं हो जाओगी, है ना? उसकी बिलीफ सिस्टम पे वर्क करना। तो अगर हम बेसिकली देखें कि ये सिचुएशन में चारों थेरेपीज हमने कैसे को यूज किया, कुकिंग स्किल्स को डेफिनेटली हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना? ये अंडरस्टैंडिंग, ये एक्सेप्टेंस लाना कि आज मेरी रेसिपी में कुछ कमी थी, तो मैं उसको और इम्प्रूव कैसे कर सकती हूँ, कुकिंग स्किल्स को और इन्हांस कैसे कर सकती हूँ, विच इज अ पॉजिटिव। अभी हमने ईगो डिफेंस मैकेनिज्म जो किया था, उसमें एक जो पॉजिटिव था, तो सीआरटी इज वन ऑफ देम, है ना? देन मैं बुरी कुक हूं को हमें बदलकर आज टेस्ट अच्छा नहीं था। एट्रीब्यूशनल में कुछ ज्यादा दिमाग में लगाना, अरे हो जाता है ना, कभी कभी हो जाता है, आज अच्छा नहीं था, मान लोगे आज अच्छा नहीं था, आज ही अच्छा नहीं था, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमेशा अच्छा नहीं था। एसआईटी में कि ऐसी सिचुएशन आएगी लाइफ में और आपको काम रहना पड़ेगा, पहले से अपने आप को प्रिपेयर करो। अनफेवरेबल सिचुएशन आएगी तो हमें काम रहना है, ये हमें ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा। आरईपीटी में हमें ये कहना है कि कभी आपसे अगर खाना गलत बन गया तो आप उसको जज खुद को नहीं कर सकते हो कि आप वाइफ अच्छी नहीं हो। ओके, सो ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, है ना? वो सेशन हमारा टाइम थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, इसलिए एग्जाम्पल्स आप पढ़ लेना। जैसे एक ही एग्जाम्पल है, मान लो किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को मैसेज किया, उसका जवाब ही नहीं आया, और वो ये सोचे कि वो मुझे पसंद नहीं करता है, तो सेम ये एप्लीकेशंस हम कैसे कैसे लगाएंगे? आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये इजीली आ गया ना? एंड ये एग्जाम्पल्स आप पढ़ोगे, एग्जाम्पल्स जरूरी हैं, एग्जाम्पल से आपका जो है अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर हो जाता है ना? सो आई हैव गिवन मोर सिचुएशंस। अभी यहाँ पर ये थर्ड सिचुएशन है कि वाइफ सोच रही है मेरा हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करता, इसमें हम ये चारों कैसे अप्लाई कर सकते हैं, है ना? नाउ कमिंग टू द ईगो डिफेंस मैकेनिज्म जो हमने किया था। अब मान लो डिनायल क्या है? डिनायल के अंदर सच को एक्सेप्ट ही नहीं करना। एक स्मोकर है, वो ये कह रहा है, वो सच को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है मुझे तो होगा ही नहीं कैंसर कभी। दैट इज डिनायल। तो कभी भी आप अनफेवरेबल सिचुएशन में हो तो आपको चेक करना है, कहीं मैं डिनायल तो नहीं कर रही, कहीं मैं रियलिटी को फेस करने से डर रही हूँ, इसलिए मैं रियलिटी, उसे रियलिटी मान ही नहीं रही, ऐसा तो नहीं है। तो हमें चेक करना है कि हम क्या डिनायल पोजीशन पर तो नहीं है, या रिप्रेशन, है ना? जैसे मान लीजिए कोई चीज आपके अंदर है, आप उसको पुश कर रहे हो, आप उसे सोच ही नहीं रहे हो, उसको अवॉइड कर रहे हो, है ना? मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आपके साथ बचपन में हुई, अब आप उसको याद ही नहीं कर रहे हो, बट अनकॉन्शियस माइंड में वो है आपके,
आप कितना भी उसे दबाओ, बट वो है अंदर, है ना। प्रोजेक्शन मैंने अभी बताया था, अपनी फीलिंग्स को किसी और पे डाल देना, है ना। गुस्सा है हस्बैंड और वो वाइफ को बोल रहे हैं कि तुम हमेशा मुझ पे गुस्सा करते हो, मतलब ब्लेम गेम। रिप्रेशन इज, सॉरी, प्रोजेक्शन इज नथिंग बट ब्लेम गेम। डिस्प्लेसमेंट, हम किसी का गुस्सा किसी और पे निकाल रहे हैं, बॉस ने डांटा घर पे वाइफ पे, अगर हस्बैंड चिल्ला रहा है वो डिस्प्लेसमेंट है। रिग्रेशन, स्ट्रेस का टाइम चाइल्डिश। कभी कभी हम क्या करते हैं स्ट्रेस के टाइम पर, अम, बच्चों की तरह बिहेव करने लगते हैं। जैसे एडल्ट लड़की है, एडल्ट है, लेकिन वो रोने लग गई और डिमांड कर रही है जैसे एक छोटा बच्चा डिमांड कर रहा है। दैट इज रिग्रेशन। हम अपने आप को जानबूझकर छोटा, या हम अपने पास्ट के फेज में चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर हमें याद है हम रोए थे तो हमें चीज मिल गई थी। तो एडल्ट होने के बावजूद हम वो चीज अप्लाई कर रहे हैं कि हमारी नीड्स जो है वो पूरी हो जाएं, है ना। रैशनलाइजेशन, गलत चीज के लिए लॉजिकल एक्सक्यूज बनाना। एग्जाम में फेल हुए, पेपर ही बेकार था, पेपर ही टफ था, है ना। रैशनलाइजेशन का मतलब हमेशा है गलत चीज को सपोर्ट करना, गलत लॉजिक को सपोर्ट करना। रिएक्शन, है ना, अपनी असली फीलिंग को कई बार लोग क्या करते हैं बिल्कुल उल्टा दिखाते हैं जो चीज है ना। ये उनका डिफेंस मैकेनिज्म है कि उनको जो करना है या उनकी जो सोच है वो बिल्कुल उसका ऑपोजिट दिखाएंगे आपको। आपको लगेगा ही नहीं कि उसके अंदर ऐसा कुछ है। ये भी एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। आपको नफरत है किसी से, लेकिन आप उसके साथ में और बहुत अच्छे से फ्रेंडली होके बात कर रहे हो। सब्लिमेशन इज द पॉजिटिव अप्रोच, जहां पर हम नेगेटिव अर्जेस को सोशली एक्सेप्टेबल एक्टिविटी में बदल देते हैं। हमारे एग्रेशन, अब किसी बच्चे को बहुत गुस्सा आ रहा है तो वो उस टाइम पे बॉक्सिंग करने लगता है अगर, है ना, या कोई भी स्पोर्ट्स में अपना एग्रेशन को डाइवर्ट कर देता है, तो वो क्या हो गया, सब्लिमेशन हो गया। आपके अंदर बहुत एग्रेशन है, उस टाइम पे आप रनिंग करने चले गए, उस टाइम पे किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में चले गए, तो आपने अपने एग्रेशन को चैनलाइज कर दिया समथिंग कंस्ट्रक्टिव में, आपने उसे स्पोर्ट्स की तरफ डायरेक्ट कर दिया। दैट इज सब्लिमेशन। आइडेंटिफिकेशन, अपने को किसी और जैसा बना के सिक्योर फील करना, है ना। बच्चा अपने हीरो की तरह बात करने लगता है, हम अपने आप को किसी आइडियल पर्सन के जैसा महसूस करने लगते हैं। इंट्रोजेक्शन, दूसरे के बिलीफ को अपना लेना, है ना। हम कई बार बिना, हमें पता नहीं है लेकिन हम बहुत सारी चीजों में किसी और के बिलीफ सिस्टम को लेकर बैठे हुए हैं अभी तक, हमें पता ही नहीं है वो एक्चुअली हमारा बिलीफ सिस्टम नहीं है। बट हमने शायद अपने पेरेंट्स को देखा है ऐसा, और वो बिलीफ सिस्टम हम लेकर बैठे हैं, उसकी वजह से आज हमें प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं है। हम अभी भी बिना क्वेश्चन किए उसी थॉट पैटर्न पर चल रहे हैं जो हमारा बिलीफ सिस्टम है ही नहीं। कॉम्पेंसेशन, कई बार हम कॉम्पेंसेट कर लेते हैं, है ना। छोड़ो, ये नहीं हो रहा तो रहने दो, कमजोरी को किसी और स्ट्रेंथ से ओवरकम कर लेना, तो अगेन ये पॉजिटिव है। अभी हमें पता है कि ये चीज तो मुझसे होगी नहीं, जाने दो, जो मुझसे हो रहा है मैं वो कर लेती हूँ, है ना। जैसे हाइट कम है तो वो अगर कुछ बास्केटबॉल नहीं खेल पा रहा है तो वो जिम में चला गया, उसको समझ, ये कॉम्पेंसेशन है जहाँ पे आपने अपनी वीकनेस को समझ लिया, अपनी स्ट्रेंथ को समझ लिया और आपने अपनी स्ट्रेंथ पे काम किया। अनडूइंग, कभी कभी हम क्या करते हैं गलती की गिल्ट को कुछ अच्छा करके कैंसिल कर देते हैं, है ना। कई बार हम करते हैं ना, कुछ अच्छा कर लिया उसकी बदले, है ना। जैसे हस्बैंड ने गुस्सा किया, अब वो क्या करेगा, फ्लावर्स लेके आ जाएगा, है ना। तो वो कॉम्पनसेट हो गया, है ना। तो ये सब हमारे अंदर से नेचुरली आता है, ये डिफेंस मैकेनिज्म है अपने आप को बचाने के लिए। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि ये हम कई बार कि नाटक मत करो, या मुझे सब पता है, तुम क्यों ले, बट हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये उसका डिफेंस मैकेनिज्म है विच इज नेचुरल, है ना। अनडूइंग, गलती के गिल्ट को कुछ अच्छा करके, सॉरी ये तो हो गया सप्रेशन। अब सप्रेशन इज क्या अच्छी बात है, हम डेलिबरेटली ऐसा कोशिश करके कुछ करना चाह रहे हैं, है ना। स्टूडेंट सोचता है एग्जाम के बाद पार्टी प्लान करूंगा, अभी स्टडी पे फोकस। तो सप्रेशन डिपेंड करता है कि आप क्या सप्रेस कर रहे हो, है ना। इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, है ना। अभी
आपको अगर पता है कि आपको बहुत ज्यादा मन है पार्टी करने का, अब आप उसको सप्रेस कर रहे हो क्योंकि अभी एग्जाम टाइम है, तो वो पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर आप अपने पॉजिटिव इमोशंस को सप्रेस करते हो तो वो अनहेल्दी हो जाएगा। तो आप सप्रेस क्या कर रहे हो, वो उस पर डिपेंड करेगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इंटेलेक्चुअलाइजेशन, इमोशंस की जगह फोकस, दैट इज माइंड, है ना, इंटेलेक्चुअल। कैंसर पेशेंट है, अब वो अपना दुख साइड में करके सिर्फ मेडिकल फैक्ट्स पे ही बातें करते हैं, होता है ना कई बार। वो सिर्फ मेडिकल फैक्ट्स पे बात करते जाते करते तो अपना माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं और वो लॉजिक्स एंड फैक्ट्स पे आ जाते हैं। सो अगेन, सो हम ये जब मैकेनिज्म्स पढ़ रहे हैं तो हमें समझ आ रहा है कि सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स नेगेटिव नहीं है। फैंटेसी, रियलिटी के दुख से बचने के लिए इमेजिनरी वर्ल्ड बना लेना। पुअर स्टूडेंट सोचता है कि वो एक दिन फिल्म स्टार बन जाएगा, सो फैंटेसी वर्ल्ड में इज नॉट गोइंग टू हैपन, सो वो भी नेगेटिव है। ओके। सो डिनायल, सच ना एक्सेप्ट करना। प्रोजेक्शन, अपनी फीलिंग्स दूसरों पे डालना। रैशनलाइजेशन, एक्सक्यूजेस बनाना, गलत लॉजिक को सही बताना। रिएक्शन, उल्टा दिखाना, बिल्कुल ही उल्टा दिखा देना। है, सब्लिमेशन इज गुड, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। सो पॉजिटिव में हम देखें तो सब्लिमेशन है, सप्रेशन है, ह्यूमर, कई बार हम अपना ही मजाक उड़ा लेते हैं ताकि स्ट्रेस ना हो। है ना, पेशेंट अपनी इलनेस पे जोक करता है ताकि एंजाइटी कम हो जाए, तो उसको ह्यूमरस वे में टॉक आउट कर लेना। है ना, ऑल्ट्रिज्म, अपने दुख दूसरों की हेल्प करके स्ट्रेस रिलीज। हम दुखी हैं लेकिन उस टाइम पे हमने ऑर्फनेज में जाकर के सेवा करी लोगों की, तो वो ऑल्ट्रिज्म हो गया। एंटिसिपेशन, ये भी पॉजिटिव हो गया। स्टूडेंट एग्जाम के लिए पहले ही स्टडी प्लान बना रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है। बाकी के सारे नेगेटिव हैं, डिनायल, रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, जितने भी हमने पढ़े हैं ये सारे ही नेगेटिव हैं। इसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐड किए हैं, है ना, ये डेफिनेशंस हैं ये सब। अब हमने सीबीटी और इसका चार्ट है, ये कंपैरिजन है। तो हमें काउंसलिंग में क्या यूज करना चाहिए? तो काउंसलिंग में हमें स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले तो हम अगर खुद की काउंसलिंग कर रहे हैं या हम किसी और की कर रहे हैं, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई क्या करना है कि हमने डिफेंस मैकेनिज्म कौन सा लिया है। तो वहीं पे हमें एक अवेयरनेस आ जाएगी कि हमारा थॉट प्रोसेस पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। उसके बाद में हमें सीबीटी अप्लाई करना है, जो भी 4 मेथड्स हैं, ठीक है। और फिर हमें लेवल ऑफ मास्लो पे भी ध्यान देना है कि जो नीड, जिस नीड के लिए मैं परेशान हूं, वो उस मास्लो के पिरामिड में कहाँ पर है। वो इमेजिन करने से ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग उस वक्त शांत हो जाएगा, जैसे ही हमें ये रियलाइज होगा कि वो हम ऊपर हैं। है ना, हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल हो चुके हैं। हमारे जो इधर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या रिस्पेक्ट एस्टीम रिलेशनशिप की नीड पे हमें दुख लग रहा है, बट वी आर ग्रेटफुल कि हमारी जो सेफ्टी, बिलोंगिंग और फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं वो हमारी जो है मीट हो चुकी हैं। दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स। ओके, सेम सिचुएशन को अलग अलग जगह लगाया है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो कि हस्बैंड अगर साइड नहीं ले रहा है, तो आरईबीटी में ये है कि हमें बिलीफ सिस्टम तोड़ना है। बिलीफ सिस्टम ये है कि वो मुझे प्यार नहीं करता, उसको हमें चैलेंज करना है, उसको हमें रिप्लेस करना है। हो सकता है वो स्ट्रेस में हो, है ना। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, सीआरटी अप्रोच, जिसमें हम 5 पॉसिबल रीजंस उसको लिखने होंगे कि अगर उसने मदर को सपोर्ट किया तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, वो उसको नोट डाउन करना है। और वो हम क्या करते हैं, हम क्लाइंट को ये बोलते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आपके हस्बैंड आपके मदर इन लॉ को सपोर्ट कर रहे हैं, आपको नहीं कर रहे हैं, तो आप बताओ क्या क्या रीजन हो सकते हैं। फिर हम उनसे पूछेंगे, अच्छा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये रीजन है, सोचो कि आपकी ननद के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रीजन हो सकता है, सोचो कि आपकी देवर की नजर, मतलब अलग अलग लोगों का पर्सपेक्टिव इस सिचुएशन पे क्या होगा। तब क्या होगा, हमारा जो है नैरो माइंडेडनेस से हम ओपन माइंडेडनेस पे आएंगे कि
सच में जो हम सोच रहे वो है, या पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं उसमें से ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। ऐसा भी नहीं है कि ये नहीं है, लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी है आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो उससे अग्रेशन जो है वो काम हो जाता है ना। देन एसआईटी, हमने सेल्फ टॉक करा है, रिलैक्सेशन, कि ऐसे सिचुएशन में आपको रिस्पॉन्ड नहीं, रिएक्ट नहीं करना है, कामली रिस्पॉन्ड करना है ना। देन मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, एंड देन हमें उनको होमवर्क एक्शन प्लान देना है ना। ये सारी चीजें बोलने में आसान लगती है, करने में मुश्किल है। ये सारी चीजें हमें ऑलरेडी पता होती हैं, बट इनको एग्जीक्यूट हम नहीं कर पाते हैं बिकॉज ये हमारे डेली डेली हैबिट्स में नहीं है। तो हमें डेली बेसिस पे ये सब चीजों को अपने लाइफ में इन्वॉल्व करना है, कि हम हमेशा ये सोचें कि हमने क्या डिनायल तो नहीं किया, प्रोजेक्शन तो नहीं किया हमने, है ना। ये हमारा डेली रिफ्लेक्शन होना चाहिए, है ना। रिलैक्सेशन प्रैक्टिस, क्या हम डेली ब्रीदिंग कर रहे हैं, डेली मेडिटेशन कर रहे हैं, डेली ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, डेली पॉजिटिव जर्नलिंग हम कर रहे हैं, है ना। बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट, क्या हम आर्ग्यूमेंट से पहले सोच रहे हैं, क्या हम कामली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या हमारे हम आउटकम को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये आर्ग्यूमेंट या ये मेरे रिएक्शन के बाद में जो आउटकम हुआ है, क्या हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या हम मास्लो का अलाइनमेंट हमारे दिमाग में रहता है जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है। ये हमें डेली बेसिस पे अपने अंदर एज अ हैबिट इनकलकेट करना होगा। देन ओनली वी विल बी एबल टू रिएक्ट एंड नॉट रिस्पॉन्ड। ओके। सो क्लाइंट के साथ में हमें एक सेशन से नहीं होगा, हमें बहुत सारे सेशंस करने होंगे, जहां पर हमें हर सेशन के बाद में उसका एक ईगो डिफेंस मैकेनिज्म चेक करना है, कि अच्छा पहले तुमने डिनायल किया था, इस बार तुम आ, इस बार क्या चेंज आया है, क्या ये प्रोजेक्शन था या क्या ये सब्लिमेशन था। तो धीरे धीरे धीरे, आप नहीं भी इमेजिन कर सकते कि क्लाइंट फर्स्ट डे और फर्स्ट सेशन के बाद ही नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाएगा। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। थॉट रिकॉर्ड्स को चेक करना होगा, स्ट्रेस कोपिंग प्रैक्टिस करनी होगी, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, आपको समझना होगा कि उस क्लाइंट की बिलीफ सिस्टम कौन से धर्म में है, कौन से रिलीजन में है। उस रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। सो अगर हम स्टेप बाय स्टेप की बात करें काउंसलिंग में, पहले तो हमें रैपो अच्छा बिल्डअप करना है, ऑब्जर्व करना है। लिसनर, वी हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर, कि हम सुने, ठीक है। और ये, अगर आप काउंसलिंग सेल्फ काउंसलिंग कर रहे हो, देन ऑल्सो यू हैव टू ऑब्जर्व योर थॉट्स, है ना। आप अपने आप को काउंसलर समझो और अपने आप को ही क्लाइंट समझो, और आप एक लिसनर बन के उस क्लाइंट्स के सारे थॉट्स को सिर्फ सुनना है। तो आप पेन डाउन भी कर सकते हो, आप अपने इमोशंस फीलिंग्स को पेन डाउन करो और बस रख दो। पेन डाउन होने से ही एंजाइटी सेटल डाउन हो जाती है ना। और अगर वो आपका क्लाइंट है तो आप उसके साथ ट्रस्ट बिल्ड करो, सेफ एनवायरमेंट प्रोवाइड करो, है ना। फिर सिर्फ इमोशन को हमें ऑब्जर्व करना है, क्या मैं एंग्री हूँ, क्या मैं सैड हूँ, क्या मैं एंग्शियस हूँ, एंग्जाइटी है मेरे अंदर, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। फिर ऑब्जर्व करना है कि अच्छा, ये मेरा नेगेटिव इमोशन था, तो मैंने किस तरह से, मेरा ईगो डिफेंस क्या था, डिफेंस मैकेनिज्म मेरा क्या था, है ना। उस चीज को समझना है, ठीक है। फिर हमें मास्लो के उस पे आना है, सेफ्टी, लव, बिलोंगिंग, इस पे आना है। देन अवेयरनेस, है ना। अवेयरनेस क्या है? अवेयरनेस ऑफ द ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, कि मेरा नेगेटिव डिफेंस था, अगर मैंने डिनायल किया, प्रोजेक्शन किया, रिप्रेशन किया, रिड्यूस किया, तो वो नेगेटिव डिफेंस था। क्या मैंने पॉजिटिव डिफेंस अप्रोच किया, सप्रेस किया, सब्लिमेशन किया, तो मेरा जो है मेरी सोल स्ट्रेंथन हुई है ना। देन फिर हम आरईबीटी पे आते हैं। हमारा जो भी बिलीफ सिस्टम है, हमें उसको क्वेश्चन करना है, उसको चैलेंज करना है। ये नहीं कह रही हूँ कि उस बिलीफ सिस्टम को हमेशा गलत ही बोलना है, वो सही भी हो सकता है। हमें सिर्फ उसको चैलेंज करना है कि क्या ये सच में सही है, और अगर है तो क्यों है, और ये बिलीफ सिस्टम मेरा खुद का है या सिर्फ मैंने किसी का सुना हुआ है।
क्या मैं किसी और के बिलीफ सिस्टम पे वर्क कर रही हूँ या ये मेरा बिलीफ सिस्टम है? इसको हम एग्जाम्पल की तरह इस तरह से कर सकते हैं। अगर आग लगी है तो क्या आप अपना हाथ उसमें डालोगे? नहीं ना? क्यों? क्यों नहीं डालोगे? हम भले ही हमने वो एक्सपीरियंस नहीं किया, बट वी नो व्हाट विल हैपन। ये तो ये फैक्ट है, इसके पीछे लॉजिक है। और अगर किसी और ने आपको बोला कि हाथ नहीं डालना है, हाथ जल जाएगा, लेकिन उस आप उसके बिलीफ सिस्टम से नहीं चल रहे हो, आप फैक्ट पे चल रहे हो, क्योंकि हाथ सच में जल जाएगा। अगर आपको लगता है कि उसका बिलीफ सिस्टम गलत है और आप उसको ट्राई करने जाओगे तो सच में आपका हाथ जल जाएगा, राइट? तो इसका मतलब ये सही है। लेकिन जहां पर भी क्वेश्चन आता है बिलीफ सिस्टम का, जहां पर आप दूसरे के बिलीफ सिस्टम पे काम कर रहे हो, आप उसको ऐसे टेस्ट करके चेक करने जाओगे और आपको लगेगा कि शायद वो गलत है ना? तो आप अपने बिलीफ सिस्टम पर चलोगे, आप किसी और के बिलीफ सिस्टम पर अगर चलोगे तो आप लाइफ में खुश नहीं रह पाओगे। कुछ चीजें जो पुराने जमाने में बिलीफ सिस्टम में थी वो उस वक्त काम करती थी, बट उसी चीज को जैसे हम ड्रैग करते जाएंगे हर जनरेशन में तो वो यहाँ पर काम नहीं आएंगे, तो बिलीफ सिस्टम्स को तोड़ना पड़ेगा, है ना? सो आरईबीटी इज ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग एंड चैलेंजिंग द बिलीफ सिस्टम। चैलेंज करना है, क्या सच में एक एक्शन मेरी वैल्यू डिसाइड करता है ना? हो सकता है सिचुएशन स्ट्रेस की वजह से, हो सकता है हस्बैंड ने जो बोला खाना अच्छा नहीं, वो ऑलरेडी कहीं और का स्ट्रेस लेकर आया है। पहली बात तो हो सकता है कि मेरा खाना सच में टेस्टी ही है ना? सो रैशनल बिलीफ को हमें रिप्लेस करना है कि हस्बैंड का एक्शन मेरी वैल्यू डिफाइन नहीं करता है, मैं वैल्यूएबल हूं। देन सीआरटी अप्रोच में हमें लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करनी है विद द हेल्प ऑफ गेम्स। बट ऐसी सिचुएशन में सीआरटी क्या होगा कि 5 पॉसिबल रीजंस कि हस्बैंड ने अगर मदर की साइड ली है तो क्यों ली है ना? कि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन मैनेज कर रहा होगा, वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता, वो टेम्पररीली अभी बिजी था, वो उसके पास टाइम ही नहीं था इतना सोचने का, वो फैमिली एक्सपेक्टेशंस को फॉलो कर रहा था, बिलीफ सिस्टम पुराने को फॉलो कर रहा था, वो लव और रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं रख रहा था, वो दोनों चीजों को बैलेंस करने के। तो देर कैन बी सो मेनी रीजंस, है ना? देन स्ट्रेस इनॉकुलेशन, meditation. Okay, so all these are the examples. सो हमें शॉर्ट टर्म गोल्स पे नहीं काम करना है, हमें लॉन्ग टर्म गोल्स पे काम करना है। लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होंगे इस सिनारियो में, इस सिचुएशन में लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होंगे? कि उसका पूरा के पूरा थॉट प्रोसेस चेंज होना चाहिए। वो जिस कंक्लूजन पे विदाउट क्वेश्चनिंग हर बिलीफ सिस्टम, वो जिस कंक्लूजन पे हर बार आ रही थी और हर बार सैड फील कर रही थी, उसका थॉट पैटर्न ही चेंज हो जाए कि वो जो सोच रही है वो पहले ये सोचे कि ये सही है या नहीं, है ना? और ऐसी सिचुएशन बार बार आएगी तो मुझे रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। ओके, सो दिस इज अ लॉन्ग टर्म गोल, इनर पीस, है ना? नॉन अटैचमेंट, माइंडफुलनेस और मास्लो पिरामिड, इन सब से हमें ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड के साथ में एवरी डे अपने थॉट पे वर्क करने से धीरे धीरे अपने अंदर ये चेंजेस हमें फील होंगे। ओके, अगेन दिस इज वन एग्जाम्पल पेपर, so there are so many examples. Now awareness help clients take control of what they focus on, overcome defense mechanism. ओके, सबसे पहले क्या किया हमने? फोकस को न्यूट्रल कर दिया। कैसे? हमने आसपास, आपको क्लाइंट से आसपास के क्वेश्चन पूछने हैं, कौन कौन से शेप्स दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से कलर्स दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से टेक्सचर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो उससे क्या हो रहा है, अटेंशन एकदम से उन सारी नेगेटिव चीजों से चले चले गया और वो एक न्यूट्रल सिचुएशन में आ गया।
ये हमें फिर धीरे धीरे इसको हैबिट बनानी है, इसको डेली प्रैक्टिस करना है। ब्रीफ मोमेंट्स ऑफ नोटिसिंग सेंसेशंस और एनवायरमेंट्स टू रीफोकस अटेंशन। फिर स्टेप नंबर 3, नेगेटिव सिचुएशंस को हमें लो करना है। अप्लाई हैबिट इन स्लाइटली स्ट्रेसफुल और इरिटेटिंग सिचुएशंस, प्रैक्टिस रीफोकसिंग अटेंशन। तो ये जो अटेंशन अवेयरनेस टेक्निक है, उससे धीरे 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 हमें शिफ्ट करना आना चाहिए कि जब भी हमारी ओवर थिंकिंग हो रही है तो हम कैसे अपने माइंड को शिफ्ट करें। हाई नेगेटिव सिचुएशंस, फिर हम जब लो लो नेगेटिव सिचुएशन पर ये अप्लाई कर पाएंगे, आफ्टर सम टाइम हम इसको हाई नेगेटिव सिचुएशन पर भी कर पाएंगे, है ना, मोर डिफिकल्ट सिचुएशंस पर भी कर पाएंगे। तो इसका की प्रिंसिपल क्या है? नेगेटिव इमोशंस को हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, हम हमें पता है कि हम नेगेटिव फील कर रहे हैं, लेकिन हम अपने अटेंशन को जानबूझकर वहां से शिफ्ट कर रहे हैं और हम अपने सेंसेस में डाल रहे हैं कि हमें क्या दिख रहा है, हमें क्या सुनाई दे रहा है, हमें क्या स्मेल हो रहा है, हमें हम किसी टेक्सचर कैसा टच कर रहे हैं या हम कुछ टेस्ट कर रहे हैं। तो हम इमीडिएटली अपने नेगेटिव थॉट्स को स्टॉप करके सेंसेस पे काम कर रहे हैं, ऑल 5 सेंसेस, व्हाट यू कैन सी, फील, टच, टेस्ट एंड हियर। ओके, दिस इज माइंडफुलनेस। एनालॉगी, नेगेटिव इमोशंस पासिंग, एक नेगेटिव इमोशंस क्या है? एक ट्रेन की तरह है, एक वेव है। अभी आप उसको अगर देखोगे कि वो आकर चली गई, एक ट्रेन की तरह वो आई और चली गई, वेव की तरह आई, तो हमें उसे होल्ड नहीं करना है। नेगेटिव इमोशन है तो हम उससे डिटैच होकर हम देख रहे हैं कि वो कैसे हमारे पास आ रही है, और हम फिर देख रहे हैं कि वो कैसे हमारे से दूर भी चली गई, आई और चली गई, आई और चली गई। ओके, सो इसका आउटकम क्या होगा? उसका उसका आउटकम ये होगा कि जो इंटेंसिटी है ना, हम उसको कम कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा फील करने लग जाएंगे, एकदम से खुश हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली उसकी इंटेंसिटी को हम कम कर पाएंगे, और हम रेजिलियंस बिल्डअप कर पाएंगे, हम स्किल डेवलप कर पाएंगे कि हम एक्नॉलेज करें कि ये नेगेटिव इमोशन हमारे हमारे से गो थ्रू हुए हैं, एंड कैसे हम उससे ऊपर आ सकते हैं। सो फिर हमें क्लाइंट्स को पूछना है कि आप बताओ, ये एक्टिविटी के पहले आपका फोकस कहाँ था, और ये एक्टिविटी करने के बाद अब आपका फोकस कहाँ है? तो धीरे धीरे क्लाइंट डिफरेंस फील करेगा। हाँ, पहले मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, ये सब मैंने किया तो कुछ टाइम के लिए वो मैं भूल गया। जब ये रियलाइजेशन एवरी डे होगा, देन उनको एक टेक्निक आ जाएगी, उनके हाथ में एक फॉर्मूला आ जाएगा कि एटलीस्ट मैं 5-10 मिनट के लिए तो ये चीज करके अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो उसको एम्पावर्ड फील होगा, और धीरे धीरे वो 10 मिनट से 15 मिनट धीरे धीरे उसे समझ आ जाएगा कि रिमोट जो है वो मेरे ही हाथ में है, कब स्टार्ट करना है और कब ऑफ करना है वो मेरे ही हाथ में है। सो अगेन ये जो मैंने स्टेप्स बताए हैं वही स्टेप्स हैं, उसको एक एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे दे रखा है। ओके, दिस इज अगेन जो स्पाइडर वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले डिस एसोसिएट हो जाते हैं। हम सिर्फ देख रहे हैं कि हम उस स्पाइडर केज के पास में हैं जिससे हमें डर लग रहा है। तो हमारा गोल क्या है? अब क्योंकि हमें डर लग रहा है तो हमें उससे एक डिस्टेंस बना के रखना है, तो हम सेफ डिस्टेंस पर हैं। हमें ये पता है कि हम डर रहे हैं, हमें ये पता है कि लेकिन हम डिस्टेंस पे हैं। फिर हम विजुअलाइज कर रहे हैं कि धीरे धीरे अब हम पास में जा रहे हैं, है ना। फिर हम उसमें ह्यूमर ऐड कर रहे हैं ताकि हमारा डर कम हो सके। अब हम इमेजिन कर रहे हैं कि स्पाइडर के फनी क्लोथ्स हैं, तो उससे क्या होगा? डर धीरे 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 कम होगा। फिर रियल लाइफ एक्सपोजर, अब हम अपने आप को पास में इमेजिन कर रहे हैं, और ये इमेजिन किया कि पास में मुझे दिख रहा है कि मैं बिल्कुल पास में हूँ, और मुझे ये भी दिख रहा है कि मैं बिल्कुल काम हूँ, मैं बिल्कुल शांत हूँ। ये मैं इमेजिन कर रही हूँ, आज किया, कल किया, परसों किया, बहुत दिन तक किया, और फिर ऐसा होगा कि वो डर जो है वो धीरे 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 जो है चला जाएगा। फीडबैक, है ना, क्लाइंट से हमें पूछना है हर बार, आपको बेटर लगा या नहीं लगा, बेटर लगा या नहीं लगा, है ना। प्रोग्रेस उसकी हमें देखनी है, उसको पीस लग रहा है, सेफ लग रहा है। तो आउटकम क्या होगा?
फियर को एक्चुअली हमने फेस किया, हमने देखा कि हम वहां पर थे, और हमने देखा कि हम उससे निकल पाए, हम उस फोबिया से निकल पाए। तो कॉन्फिडेंस आया, कंट्रोल आया, रेजिलियंस आया, है ना। सो फेस फियर इन सेफ स्टेजेस। तो हमें अचानक नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को हाइट से डर लगता है, इसको प्रैक्टिकल आप कैसे कराओगे? उसको बिल्कुल कम हाइट वाली जगह पे ले गए, फिर वहां देखा कि उसको सेफ लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो थोड़े दिन तक वहीं लेकर गए, वहीं। फिर धीरे 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 थोड़ा सा हाइट बढ़ाया, फिर थोड़ा हाइट, थोड़ा 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 थोड़ा, है ना। ये प्रैक्टिकल तरीका है उसको उस डर से निकाल। तो किसी का कोई डर है, वो आप तुरंत नहीं निकाल सकते, आपको बहुत छोटे 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 स्टेप्स में आगे बढ़ना होगा। किसी भी तरह के डर को निकालने के लिए यू हैव टू प्लान स्टेप बाय स्टेप, है ना। देन एनएलपी, जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है। स्विशिंग है क्या? स्विशिंग एक टेक्निक है जिससे हम इमोशनल स्ट्रेस को चेंज कर सकते हैं, स्टेट्स को, है ना। हम इसमें क्या करते हैं, आपने देखा होगा गाइडेड मेडिटेशन जिसको बोलते हैं, है ना। आपको बोला जाता है आप आंखें बंद करो और सिर्फ सुनो, और वो जो सुन रहे हो उसको विजुअलाइज करो। तो ये विजुअल ऑडिटरी क्यू मेथड होता है, जहाँ पे थेरेपिस्ट जो है वो क्लाइंट को बोलता है आप ये इमेजिन करते जाओ, और ये उसी पे काम करेगा जो वो सिचुएशन को इमेजिन कर पाता है ना। हर एक के लिए ये पावरफुल नहीं है, लेकिन हाँ, जो भी ओवर थिंकर्स हैं, जितने भी ओवर थिंकर्स हैं, उनकी इमेजिनेशन स्ट्रांग होती है, इसीलिए वो ओवर थिंक करते हैं और इसीलिए वो स्ट्रेस में होते हैं। सो मोस्टली ये काम करती है, बिकॉज अगर आप ओवर थिंकर हो, वो इसीलिए है क्योंकि आपकी इमेजिनेशन ज्यादा है। तो एक तो ये चीज समझो कि अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और अगर आप स्ट्रेस या एंजाइटी फील कर रहे हो, यानी कि आप में इमेजिनेशन की पावर है। जिस दिन आपको ये समझ आ गया कि आपके अंदर इमेजिनेशन की पावर है, उस दिन आपको ये समझ आ जाएगा कि आप अपनी इमेजिनेशन की पावर को पॉजिटिव डायरेक्ट कर सकते हो। जो विजुअलाइज आप नेगेटिव कर रहे हो, तो वही वही इमेजिनेशन को यूज करना है, लेकिन पॉजिटिव सिचुएशन के लिए, नॉट फॉर द नेगेटिव सिचुएशन, है ना। तो इसलिए ये एनएलपी बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा काम आता है, क्योंकि एनएलपी विजुअलाइजेशन पे वर्क करता है, इमेजिनेशन पे वर्क करता है, और जितने भी ओवर थिंकर्स हैं वो दे आर हाईली इमेजिनेटिव पीपल। ओके। सो इसमें हम क्या करते हैं, थेरेपिस्ट जो है वो इमेजिन करता है स्विशिंग, एक नेगेटिव इमेज से कैसे आप धीरे धीरे दूर जा रहे हो, और धीरे धीरे पॉजिटिव इमेज से उसको रिप्लेस कर दिया जाता है ना। तो रीप्रोग्रामिंग है ब्रेन की, जहां पर आप जो सिचुएशन, या मान लो आपने एक सिचुएशन देखी, उस सिचुएशन पे आपने रिएक्ट किया था, आपने अपने बच्चे को बहुत जोर से डांटा था। अब एनएलपी के थ्रू आप आईज क्लोज करवा के वही सिचुएशन दोबारा रिक्रिएट करोगे, और उस सिचुएशन में देखोगे कि आप अपने आप को विजुअलाइज करोगे कि उसी सिचुएशन पे आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, आपने सॉरी, आपने रिएक्ट नहीं किया, आपने रिस्पॉन्ड किया, बहुत कामली उस सिचुएशन को आपने हैंडल किया। जब आप ये अपने आप को विजुअलाइज करोगे, तो ये आपके ब्रेन को की वायरिंग को चेंज कर देगा, और आपका ब्रेन इस चीज को पकड़ लेगा कि मुझे ऐसी सिचुएशन में ऐसे रिस्पॉन्ड। अभी तक आपकी ब्रेन की वायरिंग ये थी कि ऐसे सिचुएशन में जब स्ट्रेस होता है तो मुझे ऐसे रिएक्ट करना है। जैसे ही आपने विजुअलाइज किया, आपके ब्रेन को एक नया फॉर्मूला मिल गया कि ऐसे सिचुएशन में मुझे ऐसे रिएक्ट। तो आप अपनी ब्रेन वायरिंग को खुद ही रीवायर कर रहे हो कि ऐसी सिचुएशन आएगी तो ऐसे कामली हैंडल करना है। ठीक है, इसीलिए हम इसको रीप्रोग्रामिंग कहते हैं। तो नेगेटिव थॉट को आइडेंटिफाई करना है, उसको इमेजिन करना है, और फिर उस नेगेटिव इमेज को रिप्लेस करना है पॉजिटिव इमेज के साथ में। और ये धीरे धीरे, कि वो नेगेटिव इमेज धीरे धीरे जा रही है और पॉजिटिव इमेज धीरे धीरे आ रही है। आपने देखा होगा जितने भी गाइडेड मेडिटेशंस हैं उसमें आंखें बंद कराई जाती है और कैसे आपको फील कराया जाता है एक एक चीज, है ना। सो स्विशिंग में क्या करा रहे हैं हम जैसे यहाँ पे जो स्पाइडर का एग्जाम्पल है, नेगेटिव इमेज पहले तो उसने अपनी बनाई कि मुझे पैनिक फील हो रहा है, फिर एक पॉजिटिव इमेज कि मैंने तो बहुत आराम से उस स्पाइडर को पकड़ा हुआ है और मैं आराम से खड़ा हूं, मुझे कुछ हो ही नहीं रहा है। तो स्विशिंग क्या हुई, इमेजिन द स्कैरी स्पाइडर इमेज जूमिंग अवे एंड इंस्टेंटली बीइंग रिप्लेस्ड बाय द काम इमेज। सो आउटकम क्या हुआ कि
instead of fear, calmness is there. So this is used for phobias, anxieties, habits, unwanted emotional reactions, है ना? So this works in combination with visualization, fear method जो हमने किया, okay? So now there are more examples, ना? अवेयरनेस कैसे कराना है फियर में, जैसे वही स्पाइडर वाला अगर है तो हमें अवेयरनेस कैसे कराना है कि अवेयरनेस का मतलब स्पाइडर से डर लग रहा है, स्पाइडर को भूल जाओ, अपने आसपास देखो, आप क्या कलर देख रहे हो, क्या टेक्सचर देख रहे हो, ये अवेयरनेस एक्सरसाइज हुई, है ना? फियर मेथड में डिसोसिएट, विजुअलाइजेशन, ये जो अभी हमने किया। एनएलपी, सो फियर मेथड और एनएलपी में क्या फर्क है? फियर मेथड में हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को स्पाइडर के पास में देख रहे हैं और फिर हम क्या देख रहे हैं कि हम वहां खड़े हैं, ग्रेजुअली हम स्पाइडर से बात कर रहे हैं, हमने उसमें रियल लाइफ एक्सपोजर डाला, हम उसको अप्रोच कर रहे हैं, हम इवेंचुअली उसको टच भी कर रहे हैं और फिर हम जो है फील कर रहे हैं कि हमने कैसे धीरे धीरे अपने फियर को ओवरकम किया है। एनएलपी में सिंपल है, नेगेटिव इमेज को रिप्लेस करना है पॉजिटिव इमेज के साथ। मास्लो का अगर पर्सपेक्टिव हम यहाँ पर लाते हैं तो भी हम सोच सकते हैं ना कि हमारा जो सेफ्टी वाला, अगर हम उस पिरामिड पे जाएं तो हमारी बेसिक नीड पूरी है, हम सेफ्टी, ये हमारी इमोशनल सिक्योरिटी है। तो हमें ये समझ में आता है कि सेफ्टी, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए हमारी नीड है। माइंडफुलनेस, सो आउटकम, तो ये पूरा विजुअल डायग्राम है। सो इस इस फॉर्मूले पर यू कैन पुट एनी of your own situation, your client situation, and work step by step, and then you will be able to change the entire thought process using all of these therapies. Okay, so yes, tell me, how did you find the session? क्या सीखा? What is your takeaway? And do you think is it really going to help you or not? I'll start. Yeah, please. So, actually, last 1 year has been very emotional roller coaster types. So, Uh, I think okay, I I'll need. just stop the recording because I'll be putting it somewhere. So when we are Yeah. discussing personal things. So, I actually, for the as far as this is concerned, ma'am, I